So this is an orientation lecture all about economics optional as well as for the Indian Economic Service. So I will explain basically the course content part obviously first, what is common between both and what are the differentiating part between both. So in the economic service as well as for the economics optional. So I will initially start with the economics optional part, which is common basically for both. So I will start with the common part first. A scheme of examination, content part, a reference, what will be the study overall, how to write an answer. I will be showing various example as well that will basically help to analyze in what way you have to basically answer the question. What are the various sources which we have to refer basically. So everything will be detailed, it will be taking around an hour basically to explain the overall approach, and then we will start with the content part. Clear? So you can write everything in your notebook also, although you know basic thing, but still it is better to write everything in your notebook. So this PPT will basically help to explain that part. So initially it is basically for the optional content part first. So the scheme of exam you all are familiar with. The first stage will be basically your prelims exam, and this is the most difficult stage, first and most difficult I say. Once you qualify in this first stage, you have a always better chance to qualify in the mains and the final. That means your probability with economics optional increases after this stage, but this stage is very डिफ़िकल्ट. इस बार का पेपर अगर आपने जनरल स्टडीज़ का देखा या सीसेट का देखा है तो ऑब्वियसली या बाकी न्यूज़ फीडबैक से भी आपको मिल रहा होगा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो द नेचर ऑफ दिस यूपीएससी एग्जाम इज दैट इट विल डिफ़िकल्टी विल नेवर रिड्यूस. तो जो एक बार सेट हो गया, कंसीडर इट टू बी द बेस. तो नेक्स्ट ईयर इट इज़ गोइंग टू बी फर्दर डिफ़िकल्ट. सो योर फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली द जनरल स्टडीज सेक्शन. कट ऑफ वहाँ पे यूजुअली लास्ट 3-4 ईयर्स से इट यूज टू बी 116, वहाँ से वो 106 पे आ गया, फिर 90s में आ गए. लास्ट ईयर के कट ऑफ में 86-87 है, एंड दिस ईयर इट विल बी इन द 70s टेंटेटिवली. एंड द सीसेट पार्ट इज अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ऑल्दो दे से दैट इट इज़ 10th लेवल मैथ्स, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट, मच बियॉन्ड दैट. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर बेसिकली फॉर दैट पर्पस. सो दिस विल बी योर स्टेज 1. Once you clear this stage, then basically we are here in this second step. We are basically conducting class for this second step. In this second step, you have a general studies 4 paper, 1000 marks, optional 2 paper, 500 marks, and essay 250. So 1750. ठीक है, 1750 ये आपका written content हो जाएगा. Out of that, merit will be decided for the interview stage. And you have to appear basically for this language paper as well as for the English paper. And but point is that the format of exam is such that on first day once mains will start, you have to write your first paper, that is essay. Next day 2 paper, after that without any break next 2 paper. तो 3 day continuous में ये आ जाएगा. कंटिन्यूटी में 3 दिन के पेपर होने का मतलब हो जाता है कि एवरीथिंग यू मस्ट बी able to reproduce it without any proper revision of the course. लास्ट मोमेंट में रिवीजन का टाइम नहीं होता है. तो लास्ट मोमेंट में अगर रिवीजन का टाइम नहीं है, देन हाउ टू बेसिकली प्रोड्यूस दैट आंसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 year 2 year डाउन द लाइन. आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ लोगे, बट उसको रिप्रोड्यूस मुझे करना है जस्ट इन 2-3 days. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ गैप ऑफ अराउंड 5 days, 5 to 6 days, एंड देन यू विल राइट योर लैंग्वेज पेपर, और नेक्स्ट डे आपका ऑप्शनल का पेपर हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब जो गैप होता है रिवीजन करने के लिए वो काफ़ी कम है. नाउ इफ द गैप इज बेसिकली लेस, देन क्वेश्चन बेसिकली बनता है कि हाउ टू बेसिकली प्रिपेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन दिस कंस्ट्रेंट. गिवन दिस कंस्ट्रेंट आपको एक्सप्लेन करना है कि आप हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट आंसर. तो टिप्स पे कैसे होना चाहिए, शॉर्ट आंसर कैसे प्रिपेयर करना, बट अल्टीमेटली यू हैव टू राइट अ वेरी डिटेल आंसर. सो नाउ आई विल कम टू द डिटेल पार्ट ऑफ इट, एंड वी आर फोकसिंग बेसिकली हियर दीज 2 पेपर. क्लियर? So your stage 3 will be obviously the interview stage 275. So 1750 written part and 275 2025 ये टोटल आपका मार्क्स होगा. आउट ऑफ दैट फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड. नाउ द स्कीम ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, वहाँ पे स्टेज 1 इन्वॉल्व नहीं है.
So there is no prelims there. You are basically only appearing for the written part, but वो written part 1000 मार्क्स का, ठीक है. जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी, ये 200 मार्क्स के ईच हो जाएंगे, और 100 मार्क्स फॉर जीएस एंड 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश. So this exam is basically of 1000 marks. Out of that 800 marks is basically economics. और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में एंड ऑप्शनल के अंदर दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग पेपर और सब्जेक्ट. ये कंटेंट जो ऑप्शनल जो सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं है. रेस्ट यू कैन से इज मोस्टली कॉमन, बिकॉज जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 मेनली इंक्लूड व्हाट, मैक्रो, international economics, public finance, global institutions. So the content of second paper and third paper is common, and this Indian economics paper is nothing but paper 2 of the optional. Clear? तो more or less वो common होगा, but ये आपका part अलग हो जाता है. और यह जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश ये वाले ये भी क्लासेज होंगी और ये काउंट हो रहे हैं आपके, ठीक है. तो ये फाइन, बट कट ऑफ का मेनली आपको ध्यान रखना है. Last year cut off out of this 1000 was 418 if I am correct. That means not even 42%. But if the cutoff is so low, it indicates various things. Why cutoff is low? Cutoff is low due to certain reasons. One important reason is the coverage of the syllabus. So the coverage is very wide. Second, they give you score only when you write from the core book. That means your answer must be in the book's language. It is not that you know the concept, understood the concept, and then you will explain in your own words. Although that is a better way of learning, but unfortunately that is not rewarding. यूपीएससी में अगर स्कोर करना है तो आपके जो आंसर होंगे वो सोर्स उसका कोर बुक होना चाहिए, मतलब बुक इस सेंटेंस होनी चाहिए. बट सिंस वी हैव नॉट रिटन दैट बुक, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस इट अनलेस वी हैव प्रैक्टिस इट अलॉट. तो 3 to 4 टाइम्स अगर आपने आंसर लिख रखा है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन द फाइनल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट थिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट एंड दैट मेक्स दिस कट ऑफ लो इज द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम. जो सिविल सर्विस के लिए प्रॉब्लम है वो यहाँ भी है. ये ऑल 6 पेपर 3 डेज में हो जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक. तो फर्स्ट डे आपने ये पेपर लिखा, नेक्स्ट डे विदाउट एनी ब्रेक. दैट मीन्स इन 3 days यू आर राइटिंग आंसर फॉर 18 hours. अगर मुझे लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल बी अनेबल टू रिकॉल वेरियस थिंग्स. एंड इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल वेरियस थिंग्स, यू आर नॉट राइटिंग बेसिकली इन द सेम मैनर इन विच यू हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट इन योर नोटबुक. नोटबुक में जो लिखा है वो कोर बुक से लिखा था, उस बुक नोटबुक के आंसर को आपको रिप्रोड्यूस करना है. बट अगर हमने लास्ट मोमेंट में रिवाइज नहीं किया तो वो एग्जैक्टली नहीं आता. फिर होता क्या है, आई नो द कंसेप्ट, फिर हम अपने लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करते हैं, और लैंग्वेज एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ मार्किंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाते हैं. बट ऑब्वियसली दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है. प्रॉब्लम है तो सबके लिए, ठीक है. एंड दिस आउट 1000 एंड देन यहाँ पे इंटरव्यू का जो वेटेज है 200 मार्क्स है, मतलब 1200 के अंदर बेसिकली ये मेरिट लिस्ट बनती है. नाउ कम टू द इनिशियल पार्ट विच इज़ द ऑप्शनल पार्ट फर्स्ट. The content first. Content is basically in paper 1 and paper 2. So you have basically 2 paper. First paper is mainly the core of economics, which means micro, macro, international economics, growth and development, money, banking and finance. So in this paper 1, there are 5 सब यूनिट्स. पेपर 1 के अंदर 5 सब यूनिट्स हैं. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दैट. 5 सब यूनिट्स बेसिकली इंक्लूड, वन विल बी द एडवांस माइक्रो, नेक्स्ट विल बी एडवांस मैक्रो, थर्ड पार्ट विल बी मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, fourth part will be international economics, and fifth part will be growth and development. I repeat, advanced micro, advanced macro,
money banking and finance, international economics, and growth and development. Now come to the detail of that. This advanced micro in optional content is basically say that it includes approaches of price determination, Marshallian and Walrasian approach, then alternative distribution theory, then market structure and modern welfare criteria. कंटेंट में ये 4 सब टॉपिक लिखे हैं विद इन एडवांस माइक्रो, और ये लास्ट 20-25 ईयर से ऐसे ही लिखा हुआ है. इस सिलेबस का भी रिवाइज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा. बट अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट से 2010 का हमने क्वेश्चन देखा, तो 2010 के अंदर भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, 2017 में भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, 2022 में भी यही टॉपिक के क्वेश्चन है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल इट सेज मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, विदाउट मेंशनिंग परफेक्ट कंपटीशन, विदाउट मेंशनिंग मोनोपोली, विदाउट मेंशनिंग इनपुट मार्केट, विदाउट मेंशनिंग मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर के भी फिर फर्दर रीज़न हो जाते हैं कि मार्केट फेलियर कुड बी बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कुड बी बिकॉज ऑफ द पब्लिक गुड, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नलिटीज़. वो सारे क्वेश्चन 2016 ऑनवर्ड्स ऐड हो गए. प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, एक कंटेंट आप यू आर बेसिकली सीइंग दिस कंटेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाहर के क्वेश्चन रहेंगे तो ये हमारा एक्सपैंड होता जाता है एवरी ईयर. तो सिलेबस एवरी ईयर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एंड इट इज एक्सपैंडिंग थ्रू द क्वेश्चन. सो यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन वाले पार्ट पे आपको ध्यान देखना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन कैसे फॉल्व. जस्ट फॉर एग्जांपल ये माइक्रो का कंटेंट है, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक है. अब मार्केट स्ट्रक्चर के टॉपिक में व्हाट वी विल बी डूइंग, आपके हेल्प के लिए सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे अवेलेबल, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी रहेगा एज वेल एज फॉर दी ऑप्शनल, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है. तो मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक 2022 बैकवर्ड अराउंड 25-30 ईयर के जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है वो सेग्रीगेटेड. आप खुद ही अगर 10-15 मिनट भी अगर डिवोट करते हो उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने में, तो आपको रियलाइजेशन होगा अगर आप इसको बैकवर्ड पढ़ना स्टार्ट करो कि लास्ट मतलब 1996 में क्या क्वेश्चन आया था, उस समय क्वेश्चन का नेचर क्या होता था, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे. लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज प्योर कंपटीशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन. डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस नाउ डेज. ठीक है, वो ज़माना ही ख़त्म हो गया. ठीक है, वो क्वेश्चन होता था जब 5 क्वेश्चन बेसिकली आप अटेम्प्ट करते थे, 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता था, 2 ऑप्शनल का पीरियड होता था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, कंटेंट डिफरेंट हो गया. तो ऑल्दो फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन रीड दिस क्वेश्चन बट डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन नाउ. जैसे जैसे आप इसे आगे प्रोसीड करते जाएंगे क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. एंड इफ़ यू सी वेदर इट देयर विल बी एनी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो 2013 से पहले कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था. जस्ट इन 1 ईयर 2019 देयर वाज 1 न्यूमेरिकल ऑन क्वाड्रेंट मॉडल, बट 2013 यू फाइंड अनदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. बट मोस्टली द क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव है. लाइक फॉर एग्जांपल 2016 क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज व्हाट इज लेमन मार्केट, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्नलिंग एंड स्क्रीनिंग इन इट, and what is asymmetric information, how does it lead to adverse selection and market failure. तो ऐसे मार्केट फेलियर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम 2016 में आया. बट मार्केट फेलियर हैज़ वेरियस रीजन्स. लाइक मार्केट फेलियर इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ asymmetric information, it is also because of externality, it is also because of public good provision. तो अगर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया 16 में, देन इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिपेयर द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, और वो अदर एस्पेक्ट पूछेगा बाद में. एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन आ गया रिपीटेडली, और पब्लिक गुड के क्वेश्चन उसके बाद आ गए. मतलब सिंस 2016 अब आपके लिए मार्केट फेलियर भी एक कंटेंट हो गया, बिकॉज उसके क्वेश्चन अब रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. एंड एज यू प्रोसीड फर्दर अगेन यू फाइंड देयर इज नो कैलकुलेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हियर एनी. क्वेश्चन का नेचर बेसिकली होता था स्टेट बेस्ड लिमिट प्राइस थियरी. अब क्वेश्चन की कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट मेरे से बेस लिमिट प्राइस थियरी पूछा गया. अनलेस वी डू नॉट नो व्हाट इज दैट कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट प्राइस, और सिर्फ कंसेप्ट से भी मतलब नहीं है, आपको उसे एग्जैक्टली डिफाइन करना है जैसे बेन ने डिफाइन कर रखा है.
दैट लिमिट प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस दैट एस्टैब्लिश्ड फर्म कैन चार्ज विदाउट अट्रैक्टिंग एंट्री ऑफ न्यू फर्म। तो ये जो एग्जैक्टनेस होगा डेफिनेशन में वो आपके आंसर में आना चाहिए, बट जो मैंने कहा वो बुक का लैंग्वेज बोला है बस, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो बार बार बोलता हूँ। आप भी अगर उसे बार बार लिखेंगे तो वैसे ही लिख दोगे। तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वहाँ क्वेश्चन आ गया राइट इज राइट ऑन बिजनेस डिलेमा एंड एशिक्लम। अब ओवरऑल ग्रेजुएशन के पीरियड में अगर आपने गेम थ्योरी कर रखा है तो गेम थ्योरी बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपने वहाँ से, बट यहाँ पे लिखने को आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एशिक्लम। यू मे नो द मीनिंग ऑफ एशिक्लम, वो एक सेंटेंस में खत्म हो गया, 2 लाइन में खत्म हो गया, एक पैराग्राफ में खत्म हो गया, बट हियर यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स। So what you should be writing in that business dilemma and Ashiklam will be basically helping you to write how to prepare that answer descriptive wise. Recently अगर क्वेश्चन आप देखते हैं तो इसमें अगेन एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन 2020 में आया और लास्ट ईयर एज वेल, बट ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब वंस यू नो दैट कंसेप्ट ना, ये 20 मार्क्स का अगर है तो आउट ऑफ 20 मिल जाएगा, बट ये रेगुलरली नहीं आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेगुलर नहीं है, आए तो अच्छी बात है, मतलब लास्ट 4-5 ईयर में एक क्वेश्चन करीब आ रहे हैं, ऑन ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आ रहा है, बट ये नहीं कि कोई भी न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, दे आर बेसिकली फोकसिंग ओनली ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्नट मॉडल, बर्टन मॉडल, स्टेकल मॉडल, दैट्स इट, खत्म, इन्हीं तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये टॉपिक वाइज बेसिकली क्वेश्चन आपको माइक्रो का मिलेगा, सिमिलरली फॉर मैक्रो, सिमिलरली फॉर वेलफेयर एंड सो ऑन, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने का एडवांटेज ये होता है कि यू नो व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक। अब मार्केट स्ट्रक्चर देखा तो एवरी ईयर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वेलफेयर 2022 में 1 क्वेश्चन है, 2021 में 2 क्वेश्चन है, 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन है, दैट मीन्स व्हाट इज द वेटेज, इट कुड बी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है। सो बाई सीइंग दोज क्वेश्चन यू विल बी एबल टू जज व्हाट इज द वेटेज, और अकॉर्डिंगली हमारे प्रिपरेशन में उस पर टाइम ज़्यादा एलोकेट करना। सो दिस इज बेसिकली फॉर द एडवांस माइक्रो सेक्शन। तो जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर ऑब्वियसली ये कंटेंट तो रहेगा, कोर याद रखिएगा, इसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, बिकॉज देयर आई सेड जनरल इकोनॉमिक्स 1 इज सेपरेट और वहाँ अप्रोच ही न्यूमेरिकल है, तो जब न्यूमेरिकल होगा तो वो क्लास सेपरेटली आपकी सेपरेटली कंडक्ट की जाएगी फॉर इकोनॉमिक सर्विस। Then the second part is advanced macro. अब only classical is mentioned, Keynesian is mentioned. एक दो प्रॉब्लम और भी याद रखिएगा जब आप माइक्रो का कंटेंट देखते हैं, तो यहाँ पे लाइक माइक्रो के और भी बेसिक टॉपिक है, लाइक प्रोडक्शन, कॉस्ट, कंज्यूमर थ्योरी, वो सब सिलेबस में तो लिखा नहीं है, तो कंज्यूमर थ्योरी का कोई क्वेश्चन रहता भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इकोनॉमिक सर्विस के अंदर है। तो जो जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे उस एग्जामिनेशन का नीड आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज रेलिवेंट फॉर मी, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी। सो फॉर सिविल सर्विस कंज्यूमर थ्योरी इज नॉट रेलिवेंट, डज नॉट मीन कि उसे क्लास में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, विल एक्सप्लेन इट, बट उसको उतना ही टाइम देना है जितना उसका इंपॉर्टेंस है, मतलब उसको आप एट द एंड कर लोगे। और इकोनॉमिक सर्विस में वो रेलिवेंट होगा तो उसको अपफ्रंट करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे, बट वो वाली क्लास आपकी सेपरेट हो जाएगी। सिमिलरली जब आप मैक्रो का सेक्शन देखते हैं तो इट इज़ नॉट मेंशनिंग लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, ओकुन्स लॉ, डिज़ाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, टेलर्स रूल, ये सारी चीज़ सिलेबस के अंदर तो लिखी नहीं है, बट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगेन सेम पॉइंट है, जो लिखा हुआ है उसे कवर करना है और बाकी एक्स्ट्रा जो टॉपिक आ रहा है वो भी कवर करने हैं, और वो फॉर दैट पर्पस यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो वाले सेक्शन में क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वाज वी कैन से डायरेक्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लिक्विड ट्रैप इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप क्या कह सकते हो कि ये यू नो दोज क्वेश्चन इन एडवांस कि लिक्विड ट्रैप का क्वेश्चन होता है, रेगुलरली क्वेश्चन आता है, तो इफ़ यू हैव अ वेल प्रिपेयर्ड आंसर फॉर दैट और आपने उसको प्रैक्टिस कर रखा है, देन ओनली व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट रीप्रोड्यूस इट, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर रहा, आपको जस्ट वो आंसर क्या कर देना, रीप्रोड्यूस करना, जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन आप कर सकते हो, मतलब 70%, 80%, 90%, दैट विल डिटरमाइन योर स्कोर। तो क्वेश्चन का नेचर यहाँ पे यूजुअली मैक्रो में न्यूमेरिकल नहीं पूछते, एक
1 ईयर को छोड़ के, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज वन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक 2020, बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स अगेन इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, ISLM का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको दोनों सेक्शन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था वो ये कि लाइक टेलर्स रूल वगैरह के जो क्वेश्चन है वो इफ यू गो द इनटू द डिटेल यू विल फाइंड दोज क्वेश्चन। तो मैक्रो के अंदर वो है। सिमिलरली व्हेन वी मूव टू द मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, दो सेक्शन है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड सेकंड पार्ट इज बेसिकली द पब्लिक फाइनेंस सेक्शन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज कोर, कोर इन द सेंस इसका वेटेज ज़्यादा है, अराउंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे इंटरनेशनल के। इंटरनेशनल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन ऑल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड सेकेंड सेक्शन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंटरनेशनल के दो सेक्शन है, जितने भी थ्योरीज है लाइक रिकार्डियन मॉडल, हेबरलर थ्योरी, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, HO मॉडल, न्यू ट्रेड थ्योरीज, ऑल थ्योरीज क्लब्ड सेपरेटली। बट क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू ट्रेड थ्योरीज एंड ओल्ड ट्रेड थ्योरीज विदाउट नेमिंग देम। तो ओल्ड थ्योरीज और न्यू थ्योरीज में डिफरेंस क्या है? तो अगर मुझे कंसेप्ट वाइज मालूम है कि ऑल ओल्ड थ्योरीज वर बेस्ड अपॉन परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के फिर असम्पशन हो गए, प्रोडक्ट वहाँ होमोजेनस हो गया। न्यू ट्रेड थ्योरीज आर बेस्ड अपॉन इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड हो गए। तो देयर कैन बी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ऑल्सो, वी आर एक्सपोर्टिंग क्लॉथ एज वेल एज इम्पोर्टिंग क्लॉथ, बट इट इज नॉट द सेम क्लॉथ बिकॉज क्लॉथ इज अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। और जो ट्रेडिशनल थियरीज है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ प्रोडक्ट होमोजेनस है। सो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग क्लॉथ यू आर इम्पोर्टिंग फूड, तो क्लॉथ फॉर फूड और फूड फॉर क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। और न्यू ट्रेड थियरी में इंटर एज वेल एज इंट्रा, और दोनों के अलग अलग रीज़न होंगे, तो उस तरीके से बेसिकली आंसर प्रिपेयर करेंगे। और सेकंड सेक्शन बेसिकली इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ थोड़ा डिटेल में सिलेबस मेंशन है। एंड द फिफ्थ सब टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिटेल है विदाउट इनफैक्ट लिस्टिंग ऑल द मॉडल्स। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अराउंड 90 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन के मिलते हैं। अगर आप लिस्ट करोगे तो इनफैक्ट 14-15 मॉडल्स हैं, ग्रोथ मॉडल्स। हैरोड मॉडल, डोमर मॉडल, हैरोड डोमर मॉडल, लुइस मॉडल, हैरिस टोडारो मॉडल, बैलेंस ग्रोथ अप्रोच, अनबैलेंस ग्रोथ अप्रोच, लिविंगस्टन थ्योरी, लिमिट्स टू ग्रोथ, सो ऑन। मतलब एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, अगर आप प्रिपेयर हो आउट ऑफ दैट 2 or 3 आपको मिलना है वहाँ क्वेश्चन। मतलब मैंने वो 15-16 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, मुझे पता है कि इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के अंदर इनफैक्ट, तो यहाँ तक जो कंटेंट है बेसिकली दिस इज़ फॉर योर पेपर 1। इसके में लास्ट में जो लिखा है वो इन्वायरमेंटल, इसके क्वेश्चन अब आज की डेट में थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ओनली 1 क्वेश्चन और कभी कभी नहीं भी होता था, बट नाउअडेज सिंस द वेटेज ऑफ दिस एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, तो क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। तो सेपरेट क्लास उसके लिए होगी फॉर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पार्ट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो कंटेंट हमने लिखा है, फ्रॉम वेयर टू रीड इट, व्हाट विल बी द सोर्स। तो देन अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट व्हाट विल बी द वेरियस सोर्सेज। अब माइक्रो के n नंबर ऑफ बुक है, किसी भी बुक से आप वो कंटेंट पढ़ सकते हो। यू हैव वेरियस पॉपुलर बुक लाइक अचला ओझा, हॉलवेरियन है, निकोलसन स्नाइडर है, अलग अलग बहुत सारे बुक आप माइक्रो पढ़ सकते हो। बट पॉइंट ये बनता है कि यूपीएससी के नीड के अकॉर्डिंगली कौन सा बुक क्लोज होगा, मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिससे हम आंसर कर सकते हैं। सो वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट फॉर मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक इट विल बी ऑलवेज बेटर टू रीड कोट्सियानिस, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13। वो इस पीपीटी में सोर्स के फॉर्म में मेंशन्ड है, जस्ट यू कैन इफ यू वांट यू कैन राइट। I will come to paper 2 later. References for this micro market structure part, I am saying chapter number 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 13 from Kotsianis. Modern microeconomics by Kotsianis.
डिफरेंट जो चैप्टर है उसमें चैप्टर 5 विथ परफेक्ट कंपटीशन, देन दीज 2 चैप्टर फॉर मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक, देन कोलिसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, एंड दिस इज बेस लिमिट प्राइस थ्योरी. ये 5, 6, 7 चैप्टर करने हैं. बट फॉर दैट पर्पस यू डोंट नीड टू बाई दैट बुक. इन योर माइक्रो स्टडी मटेरियल दिस चैप्टर जेरोक्स विल बी इंक्लूडेड. तो आपको बुक बाई नहीं करनी है. रिमेंबर, जो भी मैं सोर्स यहाँ लिख रहा हूँ वो सोर्स का जेरोक्स आपके स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड होगा. क्लियर. तो आपको बुक जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट कि आपने पहली क्लास अटेंड की और जा करके मल्टीपल बुक बाई कर ली, वो काम नहीं करना. बट डिफरेंट सोर्सेज हैं बिकॉज दे आर वेरी, रिमेंबर कोई कंप्लीट जो बुक होती है ना वो इन टोटलिटी बेटर नहीं होती है कि सारे के सारे चैप्टर उसमें अच्छे लिखे हुए हैं. हर बुक का अपना एक स्ट्रेंथ है, एडवांटेज है, और उसके अपने वीकनेस भी है. तो मुझे जिस बुक का जो स्ट्रेंथ है वो पिक करना है. तो कोर्सानिस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वहाँ से ले लिया. अब अगर इसी टॉपिक को आप किसी और सोर्स से पढ़ लेते हो, लाइक पॉपुलरिटी जैसे चला हो जा पढ़ा, तो मैं उसके जस्ट जो ड्रॉबैक है वो बता दे रहा हूँ. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से जनरली यू गेट 1 or 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, एंड द क्वेश्चन इज आइदर ऑन एक्सेस कैपेसिटी और ऑन चैम्बरलिन मॉडल. यही 2 क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं. चैम्बरलिन मॉडल हैज़ 3 वर्जन, model A, model B, model C, well explained in this book, that if what will happen if there is only free entry, what will happen if there is only price competition, what will happen when price competition and free entry both is there. तो वो कोर्सानिस ने अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है और एच एल आहूजा में वो सेपरेट करके एक्सप्लेनेशन नहीं है. अगेन एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ बेटर एक्सप्लेन है, बट इट डज नॉट मीन कि आपको एच एल आहूजा मैं रेफर करने को नहीं बोल रहा. एच एल आहूजा आप रेफर करोगे फॉर वेलफेयर सेक्शन, है मेंशनिंग दैट. ठीक है, वेलफेयर वाले पार्ट के लिए आप एच एल आहूजा रेफर करो, इट इज़ वेल एक्सप्लेन. वो आपको कुछ साइंस में नहीं मिलेगा उतना. पैरेटो ऑप्टिमलिटी का लिमिटेशन है या कैल्डोरिस कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, एसिटॉस्की पैराडॉक्स है, तो वो क्वेश्चन आपको फिर एच एल आहूजा से रेफर करना है. तो जिस बुक में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसका कंपाइलेशन आपके कंटेंट के अंदर हो. Referring to those sources, I will be basically conducting the class lecture and everything will be dictated to you. ठीक है, जैसे अब तो ये मार्केट स्ट्रक्चर वाले पार्ट के लिए हो गया. फॉर वेलफेयर, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ जगह यहाँ लिखा हुआ मेल फ्रॉम रिस्पॉन्ड, ये कुछ जर्नल के टॉपिक होंगे, मतलब किसी बुक का वो पार्ट नहीं होगा, वो आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में या जो ऑनलाइन क्लास करें यार का ई बुक वाले सेक्शन में अपलोडेड होगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड जस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट. बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज में कैल्डोर केलस्की से लिखा हुआ है, बट देर आर अदर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज ऑल्सो. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट का क्वेश्चन आता है, कॉसी रेंट का क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई नहीं है. फॉर मैक्रो, यस, फॉर मार्केट स्ट्रक्चर इट इज कोर्सानिस. फॉर वेलफेयर एच एल आहूजा. ये आपके पास टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल होगा, उसके अंदर सारा डिटेल लिखा हुआ है. ठीक है, अगर पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं हो, एवरीथिंग इज़ बेसिकली अवेलेबल. ठीक है, वो रिटन फॉर्मेट में, बट प्रेफरेबली जब आप अपना ओन नोटबुक बना रहे हो तो उसमें फर्स्ट पेज पे आप लिख लोगे तो बेटर होगा. ये नहीं कि लास्ट में आप मल्टीपल सोर्सेज ढूंढ रहे हो. सब कुछ जो यहाँ इस पीपीटी के अंदर है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ये अपलोड कर देंगे. सेकेंड पार्ट इज बेसिकली एडवांस मैक्रो. और फॉर एडवांस मैक्रो, for this classical section only, chapter 3 and 4 from Freund. Freund is a very good book for macro, but ये नहीं करें कि complete Freund पढ़नी है, उसके बेस कुछ certain selected chapter पढ़ने हैं. तो for classical model only these 2 chapters. अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. When you read a book, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा फ्रॉयन का. दिस चैप्टर इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग व्हाई क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल. क्लासिकल कंसेप्ट और क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल क्यों बनता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल डाइकॉटमी एंड क्लासिकल मॉनेटरी न्यूट्रलिटी. बट जस्ट उस शॉर्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए अराउंड 20-25 पेज का रिटन पार्ट होगा, मतलब उस चैप्टर के अंदर अराउंड 20-25 पेजेस होंगे. द पर्पस ऑफ क्लास विल बी बेसिकली दैट दिस विल बी कन्वर्टेड इन योर क्लास नोट्स
in about 6 to 7 page. That means all the main aspect of this chapter will be written in a, will be provided to in the form of proper dictation. Now मतलब 20 को हमने 6 to 7 साइड में पहले कन्वर्ट किया, देन योर वर्क स्टार्ट्स आफ्टर दैट. दिस इज बेसिकली माई वर्क. उस 20 को पहले 6 to 7 पेज में कन्वर्ट करेंगे. अब जो आपके पास क्लास नोट्स है वहाँ से आपको क्या प्रिपेयर करना है, फ्रॉम देयर यू हैव टू प्रिपेयर आंसर. योर आंसर विल बी इन अराउंड ओनली 2 पेज. उससे ज़्यादा का स्पेस नहीं होता वहाँ, 2 to 3 साइड्स से अवेलेबल होते. तो जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग एनी आंसर इन 2 पेजेस, दैट विल बेसिकली हेल्प. तो ये 20 पेज के कंटेंट को आपने 2 पेज में कन्वर्ट किया हुआ है. बट उस 2 पेज के अंदर जो टॉपिक होगा, जो सेंटेंस होंगे, पैराग्राफ होंगे, वो वही होनी चाहिए जो बुक में थे. किसी क्वेश्चन का 150 वर्ड होता है, किसी का 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ तो 150 वर्ड्स लिखा होता है, 20 और 15 के लिए वर्ड्स नहीं लिखे होते, बट स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाता है. तो स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया मतलब एम्प्लाइड हो गया अराउंड 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स का आप आंसर लिखोगे, उससे ज़्यादा का आंसर आप कोई भी नहीं लिख रहे. तो 20 पेज को आपको ये 2 पेज में कन्वर्ट करना है. बट जो मैं स्टार्ट में कह रहा था उसी पॉइंट को दोबारा बता रहा हूँ कि इट विल बी, ये ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रेट अवे डायरेक्टली वो लिखते जाओगे. ये 6 पेजेस आपको याद होने चाहिए पहले तो, ज़्यादा से ज़्यादा. इस आंसर को लिखने के लिए अब आपका काम हो गया, वहाँ से अब आपको डेली आंसर लिखने हैं. डेली 1 or 2 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली एज वेल एज योर द रेगुलर टेस्ट. तो इफ यू आर मेकिंग हैबिट ऑफ राइटिंग 2 or 3 क्वेश्चन ऑन अ रेगुलर बेसिस. और रेगुलर बेसिस पे कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास बिगिन हुई, सपोज वी स्टार्ट विद द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक. तो मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक के ये सारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. अब क्लास हो गई, मैंने कहा कि ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस क्लास यू कैन आंसर व्हाट इज कंजेक्चुरल वेरिएशन, दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 7. तो अब घर जा कर के बेसिकली आपके पास नोट्स अवेलेबल है, उसको क्या करना है, आंसर के फॉर्मेट में लिखना है. आंसर लिखने के कुछ एडवांटेज है. नंबर 1, वो नोट्स लर्न हो जाएगा. सेकेंड, व्हेन यू विल राइट टेस्ट योर आंसर विल बी मोर एग्जैक्ट. जब आप उस टेस्ट वाले क्वेश्चन को फिर मेंस में लिखोगे इट विल फर्दर इम्प्रूव. एग्जैक्टनेस आ जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, और जो स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, टाइम बाउंडिंग है, वो सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे. अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो टाइम मैनेजमेंट ईजी होगा, एग्जैक्टनेस बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बेसिकली पुश योर स्कोर. किसी एक क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम स्कोर को पोस्ट करते हैं इवन बाई 0.5, हाफ मार्क्स का भी इम्प्रूवमेंट अगर आप करते हो, अब वो 5 नंबर मिलना है या 5.5 मिलना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू टेल कि क्या करने से वो मिल जाएगा. बट फ्यू थिंग्स जिसको हम नोट कर सकते हैं, वो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टनेस नॉट इन द कंप्लीट आंसर बट एटलीस्ट अप फ्रंट स्टार्ट में जो आंसर होगा, अगर वो मेरा एग्जैक्ट है तो, प्लस डायग्राम का प्रेजेंटेशन क्लियर है, प्रेजेंटेशन ओवर क्लियर है, तो उस 1 नंबर का डिफरेंस हम क्वेश्चन में कर सकते हैं. ऑप्शनल में हर पेपर के अंदर आप 19 क्वेश्चन लिखते हो. मैं भी क्वेश्चन पैटर्न एक्सप्लेन करूँगा. 1 नंबर का भी डिफरेंस क्रिएट किया तो 19 मार्क्स का गैप होता है. 2 पेपर मिला करके 38 मार्क्स का गैप होता है. यही गैप है 240 में और 278 में. 248 पे आप बाहर हो और 278 पे यू कैन गेट एनी रैंक जस्ट बाय मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ 1 मार्क इन एवरी क्वेश्चन. 1 नंबर का गैप. आपका फोकस सिर्फ जब क्वेश्चन लिखोगे इस पे रखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ऐड करना है, इम्प्रूवमेंट करना है. उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा. क्लियर. तो पर्पस बेसिकली क्या होगा, आपको ये वर्क इस पे ध्यान दीजिएगा. 20 बुक से आपको क्लास नोट्स बनाना है. क्लास नोट्स यहाँ ये क्लास के अंदर हो जाएगा. इस क्लास नोट से क्या करना है, आपको आंसर लिखना है. आंसर सेल्फ असेसमेंट के लिए, बट इनिशियली आई विल हेल्प बेसिकली हेल्प कि आप सही डायरेक्शन में लिख रहे हो या कैसे लिखना है. फॉर दैट पर्पस ऑल्सो कुछ आपको मॉडल आंसर मैं लिख करके दूंगा, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, वो आपको काफ़ी सारे मॉडल आंसर बेसिकली यहाँ लिखे हुए मिलेंगे.
मान लिया इस टाइप के क्वेश्चन है, मैक्रो के अंदर क्राउडिंग आउट का क्वेश्चन है, तो क्राउडिंग आउट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्राउडिंग आउट? क्वेश्चन था व्हेन क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज वेरी हाई, फिस्कल पॉलिसी मे नॉट बी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कमेंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्वेश्चन में यूज हो गया वो क्राउडिंग आउट है। सो जो भी क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यू आर एक्सपेक्टेड टू बेसिकली डिफाइन, मतलब आपका आंसर बेसिकली बिगिन होगा वहाँ से। तो क्राउडिंग आउट बेसिकली रेफर्स टू डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट विच इज आउटकम ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन। तो ये पहली लाइन मेरी वेल डिफाइंड हो जाएगी। It reduces the effectiveness of fiscal policy and the extent of crowding out depend upon the slope of LM curve. इस पहले पैराग्राफ के अंदर मैंने इनफैक्ट जितने डायमेंशन है क्वेश्चन के वो सारे लिख दिए। What is the meaning of crowding out? Why it happens? How it reduces the effectiveness of fiscal policy and the extent of it depend upon the slope of LM curve. These type of paragraph you are expected to learn and reproduce. अब इसी का एलैबोरेशन बेसिकली बाद वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके सब पार्ट के अंदर हो रहा है। ऐसे इनिशियली आई विल बी गिविंग यू मेनी क्वेश्चंस जिसका आंसर प्रिपेयर्ड होगा, दैट विल बेसिकली हेल्प हाउ टू राइट एन आंसर। और इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, 2 साइड्स काफ़ी है। मतलब 150-200 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो, स्टार्ट में अगर आप ज़्यादा लिखो उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज ज़्यादा लिखा होगा तो फाइनली वो 70-80% ही रिप्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो ये सैम्पल आंसर्स फॉर्मेट जस्ट शो करने के लिए क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेडली है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑप्शनल दोनों के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आपको मिल जाएगा। कैल्डर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल, हाउ इट इज एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एंड व्हाट इज सेटोस्की व्यू इन दिस रिगार्ड। तो पैरेटो क्राइटेरिया बेसिकली स्टेट्स दैट एन इकोनॉमिक चेंज विच हार्म नो वन एंड मेक समवन बेटर ऑफ इंडिकेट एन इंक्रीज इन वेलफेयर। तो यू जस्ट स्टेटेड द पैरेटो क्राइटेरिया, therefore this criteria does not apply to those economic changes which harm someone and benefit the others। मतलब अगर किसी का हार्म हो रहा है और किसी का बेनिफिट हो रहा है तो वहाँ पैरेटो क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। तो नहीं होता तो हाउ टू मेक जजमेंट वेदर इट इज इम्प्रूविंग द वेलफेयर और नॉट। सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ पैरेटो, उसको ओवरकम किया कैल्डोरिस कॉम्पनसेशन ने, उसका लिमिटेशन बताएंगे और सेटोस्की पैराडॉक्स बताएंगे। तो आपको इस तरीके से बेसिकली आंसर को प्रिपेयर करना है। एक आंसर आपको मिलेगा फ्रॉम माई साइड जो मॉडल आंसर होगा, दूसरा मिलेगा जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनके जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडल आंसर है। वी विल बी शेयरिंग मॉडल आंसर ऑफ दो स्टूडेंट्स एज वेल, लाइक दिस इज आंसर शीट ऑफ अर्जुन गुप्ता, इज IAS टॉपर फॉर दिस ईयर और सिविल सर्विस के अंदर भी आई थिंक 228 रैंक है। मतलब प्रिपरेशन दोनों के लिए किया, दोनों में सेलेक्टेड भी हुआ, एक जगह वो टॉपर है, एक जगह 228 रैंक है। तो हाउ दे वर बेसिकली राइटिंग आंसर ओवर, देखिए किसी एक पर्टिकुलर आंसर पे मत जाना, वो आंसर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव ना लगे, आपको लगे इससे बेटर तो मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन राइट बेटर आंसर दैन दैट। पॉइंट ये बनता है कि हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर। एक क्वेश्चन तो कोई भी अच्छा लिख सकता है, बट पूरे आंसर शीट को वैसे ही लिख देना वो चैलेंज होता है। और वो एक टेस्ट में नहीं होगा, एक टेस्ट हो गया, मल्टीपल टेस्ट होंगे, मल्टीपल टेस्ट होगा तभी आप लिख पाओगे। मतलब अगर सीरीज के अंदर 12 टेस्ट है, ऑल 12 टेस्ट आपने पूरा लिख दिया, किसी एक टेस्ट में सेक्शनल में आपने बेटर कर दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इन सारे जो आंसर शीट होंगे, चाहे आप अर्जुन गुप्ता का देख लो या किसी और स्टूडेंट के लिए देख लो, ईशा अगर ये भी इकोनॉमिक सर्विस के लिए, तो प्रेजेंटेशन वगैरह पे ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली यू विल, अगर आप पूल बड़ा करो सैम्पल साइज, तो विल फाइंड समथिंग कॉमन, एंड व्हाट इज विल बी कॉमन इन ऑल, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी। प्रेजेंट करने का तरीका मोर लेस सबका आपको सिमिलर लगेगा, एग्जैक्टनेस ज़्यादा मिलेगा उनके आंसर के अंदर। सिर्फ वो ये नहीं होगा कि उन्होंने जस्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिख रखा है, लाइक हम जनरल स्टडीज़ में जैसे आंसर करते हैं पॉइंट्स बना दिया। रिमेंबर दिस इज योर डिस्क्रिप्टिव आंसर, ऐसे टाइप आंसर लिखते हैं तो वो शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर होता है, वो इंडिकेट करता है वेदर यू आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स और नॉट। तो हमारा एक्सप्लेनेशन बेसिकली टेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको मॉडल आंसर वहाँ मिल जाएंगे।
देन कम टू दैट पार्ट, यहाँ तक क्लियर है। वैसे मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन में है, तो सारे पार्ट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉइंग जहाँ जहाँ कंटिन्यू रहेगा वहाँ रहेगा। डिमांड फॉर मनी में रिसेंटली कुछ क्वेश्चन ब्रांसन के पूछे गए, तो मैंने ये प्रॉपर लिस्ट आपको इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबके लिए बना रखा है। इंटरनेशनल में मेनली दो ही सोर्स हैं, आइदर पॉल क्रुगमैन पढ़ रहे हो या सैल्वाडोर पढ़ रहे हो। पॉल क्रुगमैन फॉर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड सैल्वाडोर फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मल्टीपल बुक है, यहाँ पे है ही नहीं, दो सोर्स बेसिकली फॉलो करने। बहुत सारे स्टूडेंट ओनली सैल्वाडोर करते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। इफ़ यू गो ओनली बाय सैल्वाडोर देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मल्टीप्लिसिटी या बुक नहीं है, बट कंटेंट यहाँ ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट ऑल्दो मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर रखा है कि सैल्वाडोर से कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, पॉल क्रुगमैन से कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, बट उनका जीरोक्स आपके स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड होगा, एक्सेप्ट आई थिंक फॉर सैल्वाडोर। मेन प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आता है इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक सर्विस। यहाँ पे कुछ कोर थियरी है जो ओल्ड थियरीज है, फॉर दैट पर्पस यू कैन रेफर एमएल झिंगन, लाइक हैरड मॉडल, डोमर मॉडल, बैलेंस ग्रोथ अप्रोच, अनबैलेंस ग्रोथ अप्रोच, लिविंगस्टन थियरी, वहाँ तक उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं ग्रोथ मॉडल जो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, जो बाद के डेवलपमेंट है, लाइक रोमर मॉडल है। तो इफ़ यू ट्राई टू फाइंड बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ रोमर मॉडल इन एमएल झिंगन तो नहीं मिलेगा। तो फॉर दैट पर्पस ये चैप्टर 5 लिखा है, जोन्स फॉर रोमर मॉडल, वहाँ से आप रेफर करोगे। न्यू ग्रोथ थियरीज है, फॉर न्यू ग्रोथ थियरी अगेन यू विल नॉट फाइंड बेटर कंटेंट इन द एमएल झिंगन, फॉर दैट पर्पस यू विल बी रेफरिंग टू द देवराज जी। तो एक एमएल झिंगन का बुक आप कोर अगर रखना चाहते हैं बुक, वो भी रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ गुड बुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है, वो आपके कंप्लीट नीड को फुलफिल नहीं करेगा। तो उस बुक के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलेगा उसको सप्लीमेंट करेंगे फॉर डिफरेंट सोर्सेज, क्लियर। तो एमएल झिंगन के सोर्स यहाँ बता रखे हैं, और जो सोलो मॉडल, जैसे सोलो मॉडल के क्वेश्चन कई सारे हैं, तो चैप्टर 7 एंड 8 फ्रॉम मैनक्यू, ये दो चैप्टर से पढ़ लो। आई थिंक सोलो मॉडल के जितने भी क्वेश्चन है गोल्डन रूल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें 16 का होगा मैक्रो में। मैक्रो में कुछ सेक्शन इनफैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जहाँ अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का भी बेसिकली ट्रेंड है। मतलब कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन, मीनिंग भी मालूम होनी चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन दिस सिंपल केनिशियन मॉडल इफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर बोथ फंक्शन ऑफ इनकम, हाउ वुड मल्टीप्लायर बी अफेक्टेड। कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसमें कंजम्पशन का फंक्शन तो दिया रहता है कि कंजम्पशन का ऑटोनॉमस कंपोनेंट है और इंड्यूस कंपोनेंट है, बट ज़्यादातर बुक के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ ऑटोनॉमस मान के चल लेते हैं, और अगर इंड्यूस मानते भी हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है। और क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, बोथ आर फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब दोनों इनकम का फंक्शन है, तो मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब बुक में पढ़ा वहाँ कंजम्पशन वाज फंक्शन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस थी। क्वेश्चन पूछ रहा है consumption investment both function of income, then how multiplier will be affected, whether it will increase or decrease। तो क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक पेपर 1 क्लियर है। पेपर 1 का बेसिकली ये सोर्स होगा। नाउ वी कैन मूव टू पेपर 2। बिगिन करने से पहले एक वर्क आप कर लो, जस्ट सी द क्वेश्चन पैटर्न। वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये मैं आईएएस वाले पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शनल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। वहाँ क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 here and question number 5 here। क्वेश्चन नंबर 1 के A, B, C
डी और ई, ये 5 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई, और ये क्वेश्चन कंपल्सरी है। क्लियर, मतलब 10 पार्ट्स कंपल्सरी हो गए। 5 ईयर 5 ईयर, 10-10 नंबर का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स कंपल्सरी हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2, इट विल हैव 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्ट होने। क्वेश्चन नंबर 7, 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 3 पार्ट। ठीक है, ABC पैटर्न ये रहना, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। और जनरली यहाँ पे क्वेश्चन का जो ब्रेकअप हो जाएगा वो 15 + 15 + 20, मतलब 15 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 20 नंबर का क्वेश्चन, 50 मार्क्स से हो गए। इन टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। यू हैव 5। फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपल्सरी हो गया, 2 तो कंपल्सरी हो गए। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट 3 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और 3 यहाँ कर लिया, तो अब आपको उस सेक्शन से सिर्फ एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि पेपर जो ओवरऑल आपको दिया जा रहा है वो कितने मार्क्स का हो गया। 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 50 नंबर का है, 400 मार्क्स का पेपर बनता है। यू अटेम्प्ट 250 मार्क्स। क्लियर, 400 का क्वेश्चन है, यू आर बेसिकली अटेम्प्टिंग 250। 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 28। आप अटेम्प्ट कितने करोगे 19। 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने ऑप्शन में दिए जा रहे हो। सेक्शन बी विल बी डोमिनेटेड बाय क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेक्शन बी में विल बी डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्दो ओकेजनली कभी कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए, बट नॉर्मली वो नहीं होता। सेक्शन ए इज मेनली माइक्रो, मैक्रो एंड मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, जनरली ये पैटर्न होता है। तो इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन माइक्रो एंड मैक्रो यू कैन चूज 2 क्वेश्चन हियर, तो फिर आपको एक ही क्वेश्चन करना है सेक्शन बी से। ठीक है, ये 400 का पेपर होता है, 250 आप अटेम्प्ट करते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे 28 क्वेश्चन है, यू आर अटेम्प्टिंग बेसिकली 19। अब इवन इफ द क्वेश्चन पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, इवन इफ द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, उस डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी याद रखेंगे कम से कम 150 मार्क्स का क्वेश्चन इजी होगा। 150 में आउट ऑफ 400 कह रहा हूँ, 150 आउट ऑफ 400, मतलब 150 मार्क्स का क्वेश्चन इजी कहने का मतलब है ये आपके पास्ट ईयर में अवेलेबल था या क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए। इसमें आपको स्कोर कर लेना है अराउंड 100, बट ये 100 तभी आप स्कोर कर पाओगे जब, जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए और बुक के लैंग्वेज में होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपने उसको बार बार प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो अगर वैसे क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो तो इन दैट 150 यू कैन स्कोर 95, 100। ठीक है, वो स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे। अब जो रिमेनिंग 100 मार्क्स का आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें इवन अगर आप पासिंग परसेंटेज मतलब अराउंड 35-40 का स्कोर भी करते हो, तो ये मिला करके आपके एक पेपर के अंदर 135-140 का स्कोर हो जाता है। दोनों पेपर में अगर आप इसको रिपीट कर लेते हो तो ये 270-280 का स्कोर है, गुड इनफ टू गेट एनी रैंक अगेन। जिसका रैंक 13 है उसके भी 276 है, 20 है उसके भी 276 है। ठीक है, जिसके 295 है उसके रैंक 240 कुछ है, मतलब 275 इज गुड इनफ टू इवन गेट टॉप रैंक। स्कोर ज़्यादा करो उसमें ही नहीं, बट आपका जो एम होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो यू आर बेसिकली एमिंग फॉर एनी स्कोर इन एक्सेस ऑफ 275 प्लस। 275 प्लस में क्या होता है कि आप टॉप
5% वाले परसेंटाइल में वहाँ चले गए। वो जो नॉर्मलाइजेशन का स्कीम है, ऑल्दो एग्जैक्ट नहीं पता होता कि यूपीएससी कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, बट सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है। मतलब जो उस एवरेज में चले गए ना, उनके नंबर वो और भी पुश कर देता है। मतलब जो हायर एंड पे है वो और हायर होता जाएगा, और जो लोअर एंड पे है वो और लोअर होता जाएगा। मतलब वो मीन से और डेविएट करता जाएगा, और अगर आप ऊपर हो तो और फर्दर इम्प्रूव करते जाओगे। तो इफ़ यू आर इन दैट रेंज, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर स्कोर मिल गया तो फिर आपके जो रैंक होगा वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, सो ट्राई टू बी इन दैट ब्रैकेट ऑफ इन लेटर से 5%। जो टॉप 5% होगा उसके अंदर बेसिकली रहने के लिए आपको बेसिकली 275 प्लस वाली स्कोर चाहिए। और 275 प्लस स्कोर लाने के लिए जो स्टडी में कह रहा है, इवन व्हेन पेपर इज डिफिकल्ट एज स्टेटेड यू कैन स्कोर दैट। डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी 150 मार्क्स का स्कोर है, उसमें 100 आप स्कोर करो, और रिमेनिंग में 35-40 भी करते हैं तो भी स्कोर हो जाता है। और अगर कोई पेपर इजी आ गया तो फिर यहाँ 35 की जगह वहाँ भी स्कोर ज़्यादा कर लोगे। इन दैट कंडीशन यू विल एक्सीड 300 स्कोर एज वेल। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न जो होगा, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। बट इकोनॉमिक सर्विस के अंदर क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, मैं मेनली जनरल 2, G2, G3 और इंडियन इकोनॉमी के लिए बता रहा हूँ। माइनर डिफरेंस है फॉर G1, बट फॉर G2 और G3 मेनली। पहला क्वेश्चन यहाँ भी कंपल्सरी है, बट इसमें A, B, C, D, E एज वेल एज F। ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ये हो गए 30 मार्क्स, ये कंपल्सरी है। दिस इज सेक्शन ए। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 9 क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर। आउट ऑफ दिस 9 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6। दिस इज योर सेक्शन बी। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन है, यू आर अप टू अटेम्प्ट एनी 6। 6 इंटू 15, 90 मार्क्स का सेक्शन बी है। यहाँ सब पार्ट्स नहीं है। ऑप्शन में क्या बोला, हर क्वेश्चन में क्या है, सब पार्ट्स है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया बिकॉज अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन 4 देखा, उसका ए नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है। मतलब ऑल 3 पार्ट्स चूज़ करने थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसे कॉम्बिनेशन ही होते हैं। वो प्रॉब्लम यहाँ पे कम है इकोनॉमिक सर्विस में। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ईजी है फॉर इकोनॉमिक सर्विस। चूज़ एनी 6 आउट ऑफ 9, तो ऑप्शन भी ठीक है, और डायरेक्ट वो क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। सेक्शन बी सेक्शन सी, वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 6 क्वेश्चन इधर हो गए सेक्शन सी के अंदर। इस 6 में से 4 करने हैं, और ये भी सिंगल क्वेश्चन है, कोई पार्ट्स नहीं है, 20 मार्क्स ईच। तो 30 मार्क्स का पहला सेक्शन हो गया, 90 मार्क्स का सेकंड सेक्शन हो गया, और 80 मार्क्स का थर्ड सेक्शन हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ करने हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ करने हैं, 4 यहाँ करने हैं, 16 क्वेश्चन करने हैं इन टोटल। ये पैटर्न G2 में भी रहेगा, 3 में भी रहेगा, एज वेल एज फॉर इंडियन इकोनॉमिक पेपर, वहाँ भी ये पैटर्न क्लियर है दोनों के लिए। बट स्ट्रक्चरिंग यहाँ थोड़ी बेटर है, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर आप कहोगे तो ये ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चरिंग है। कंपल्सरी तो दोनों जगह लिखने थे, बट यहाँ पे कंपल्सरी किसने क्वेश्चन लिखे आपने 6, और वहाँ पे 10 लिखा है। वहाँ पे 100 मार्क्स कंपल्सरी हो गया, और यहाँ पे 90 मार्क्स 30 मार्क्स कंपल्सरी होंगी। वहाँ 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, और यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरी है। मार्क्स के टर्म में 30 मार्क्स कंपल्सरी है इकोनॉमिक सर्विस में, और वहाँ 100 मार्क्स कंपल्सरी हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना? दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू स्कोर in excess of 275. Now briefly I will explain the paper
2 strategy, which is mainly इंडियन इकॉनमी. ठीक है, सिविल सर्विस के लिए पेपर 2 है और इंडियन इकॉनमी सर्विस के लिए आपका इंडियन इकॉनमी का पेपर है, 4th पेपर है, लास्ट पेपर. सिलेबस में अगर आप इसको पेपर 2 का देखना, पेपर 2 1 इज इंडियन इकॉनमी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. तो ऑप्शनल के अंदर ये प्री इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट होगा. इकोनॉमिक सर्विस में ये कंटेंट नहीं है. क्लियर? इंडियन इकोनॉमी का पेपर कॉमन है, बट उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें प्री इंडिपेंडेंस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आईएएस के लिए नहीं होगा, ओनली फॉर द सिविल सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शन. सोर्स इज बेसिकली एसएसएम देसाई, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. वो स्टडी मटेरियल जो 5th वॉल्यूम होगा उसके अंदर इंक्लूडेड होगा. यू कैन रीड फ्रॉम दैट. इसकी स्कैन कॉपी भी अवेलेबल होगी साइट पे. शॉर्ट बुक है बट बहुत रेलिवेंट है, पॉइंट्स वाइज सारे गिवन है. और इम्पॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस का ये है दैट इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर, अब ये पेपर 2 का टॉपिक वाइज क्वेश्चन है. पेपर 2 टॉपिक वाइज क्वेश्चन फॉर इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. अब 22 के क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखते हो तो यू फाइंड 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. 21 के अंदर फिर से 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4. 20 के अंदर अगेन 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अराउंड 4 to 5 पार्ट्स इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके पूछे जा रहे हैं रिसेंटली. अर्लियर इट यूज टू बी ओनली 1 ऑफ क्वेश्चन, बट लास्ट 4-5 ईयर से इसका वेटेज बढ़ा हुआ है. बट एरिया डिफाइंड है. क्वेश्चन या तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, या रेलवेज है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लैंड टेन्योर सिस्टम है. तो डिफाइंड एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मतलब 7-8 बेसिकली टॉपिक है जिसको आपने प्रिपेयर कर रखा है. तो आउट ऑफ दैट 7-8 टॉपिक 2 और 3 टॉपिक आपको हर बार मिल जाएगा. ये स्टैटिक पार्ट हो गया. वन मिथ अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज दैट इट इज़ कम्प्लीटली डायनेमिक. तो उस मिथ को भी आप थोड़ा ब्रेक कर लो. इस पार्ट में कोई डायनेमिज्म, ये प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे कोई डायनेमिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, सेक्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे इसमें. फिर जो सेकंड सेक्शन है वो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस है. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस वन सेक्शन इज प्री लिबरलाइजेशन एरा. सो दिस इज बेसिकली प्री रिफॉर्म. सो प्री 1991 है, ये प्री 1991 है. सो दैट पार्ट इज ऑल्सो स्टैटिक. वहाँ पे डायनेमिक या करंट क्वेश्चन नहीं हो रही है. आपसे 91 से पहले की इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है. तो दिस सेक्शन इज अगेन द स्टैटिक पार्ट. सोर्सेज यहाँ पे नीचे मेंशन है. मोस्टली PW आर्टिकल्स होंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. अगर वो हैबिट हो किसी स्टूडेंट को, बट बहुत वॉल्यूमिनस होता है, बट इफ़ यू हैव अ हैबिट यू कैन रीड इट, इट इज़ वेरी गुड. और अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करंट भी पढ़ो तो. सेकेंड पार्ट इज बेसिकली पोस्ट लिबरेशन एरिया. सो दिस इज योर सिंस 1991. यहाँ पे कुछ सेक्शन आपके करंट बेस हो गए. तो अगर हमने पेपर 2 को पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 2 पार्ट स्टैटिक हो गया, 1 पार्ट इज यू कैन से द डायनेमिक पार्ट. पेपर 1 completely static, पेपर 2 2/3 is static, only 1/3 is dynamic. So out of 28 question, current based question you can find maximum 5 to 6 parts. Out of that 28 5 to 6 पार्ट, उससे ज़्यादा करंट का डायमेंशन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन इसको आप पढ़ने का स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होता है कि ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना इंडियन इकोनॉमी तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा और प्री पोस्ट रिविजन में डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है. यू विल रीड सेकेंड पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इन सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन करोगे इसको. इसको क्या करना है, आपको सेक्टर वाइज पढ़ना है. सेक्टर वाइज मीन्स यू प्रिपेयर एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट, वेदर इट इज प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन. You prepare industry complete, pre and post both, as well as for service.
you prepare it for the public finance sector. Similarly, you prepare it for the monetary management. इसमें बैंकिंग एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट आ जाएगी. जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, उनको क्लब करके एक सेक्टर अलग कर लीजिए. इकॉनमी का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है और उसकी कंपोजिशन है सिंस 1951 to 2022-23, व्हाट वाज द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द इंडियन इकॉनमी. अलग अलग फेजेज हैं इसके कि फर्स्ट 3 डेकेड सिंस इंडिपेंडेंस characterized by the low rate of growth, 1980 onwards high rate of growth, 91 onwards further increase in the growth rate, 97-98 onwards slow down, 2003-4 to 2009-10 again there is a higher growth rate, 2009-10 onwards again there is a lower growth rate, 2016 onwards that means pre demonetization and then post, फिर अब आज के कंटेक्स्ट में हो जाएगा प्री कोविड पोस्ट कोविड. तो 1947 या 1951 से आज तक के डेट का ग्रोथ रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए. नॉट फॉर द ओवरऑल इकॉनमी बट व्हाट वाज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, व्हाट वाज हैपनिंग इन द एग्रीकल्चर, व्हाट वाज हैपनिंग इन द सर्विसेज, और उनका रिलेटिव शेयर कैसे चेंज हुआ इकॉनमी के अंदर. तो दिस वाज वन सेक्टर. देन वन टॉपिक विल बी ऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्लानिंग. एक एरिया आप इसमें जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, करंट टॉपिक, उसको एक जगह क्लब कर देंगे. ऑल करंट टॉपिक्स क्लब्ड. इनफैक्ट टोटल 10 टॉपिक में मैंने डिवाइड कर रखा है, इंक्लूडिंग दैट प्री इंडिपेंडेंट सेक्शन. और हर टॉपिक का क्या हो गया, जैसे भी इंडियन इकॉनमी प्री इंडिपेंडेंस हो के अब आपने मान लिया एग्रीकल्चर का सेक्टर लिया, तो पहला काम होगा किसी टॉपिक को पढ़ने का, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पहले निकाल लीजिए. पहले आप ये क्वेश्चन देख लो कि एग्रीकल्चर में अभी तक कितने क्वेश्चन आए गए. वहाँ से लिस्ट ऑफ टॉपिक प्रिपेयर कर लिया कि क्वेश्चन इज आइदर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, और इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, इट इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, it could be related to the agriculture food management. तो 7-8 सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे. हर टॉपिक पे आपके पास राइटअप प्रिपेयर होगा जो क्लास के अंदर हो जाएगा. एंड देन यू हैव टू बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाले होंगे. डिस्कस द फीचर्स ऑफ द TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो अगर आपको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, हाउ इट वाज ओवरकमिंग द ड्रॉबैक ऑफ द प्रीवियस PDS और उसके साइलेंट फीचर्स क्या, अगर वो फैक्ट के फॉर्म में याद है तो बेसिकली वहाँ लिख देना. तो एग्रीकल्चर का वैसे क्वेश्चन आपको इंडस्ट्री और सर्विसेज के, ये जितने भी सेक्टर मैंने कहा 10 टॉपिक हैं यहाँ पे. हर टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सोर्सेज मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना. क्लियर. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो एक्सप्लेन करना हुई है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच, वो ये कि इन फर्स्ट पेपर विच इज़ micro, macro, international growth and development, in paper 1 if you read more, practice more, it will pay you, मतलब स्कोर आपका ज़्यादा आएगा. और अगर थोड़ा सा भी लूज़ कर दिया, छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर, तो डबल एज वेपन है, वो उतना ही ज़्यादा कम भी हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन स्कोर इन अराउंड 160 और 170 ऑल्सो आउट ऑफ 250, और यू मे लैंड अप बिलो 100 ऑल्सो. मतलब वहाँ 80-90 ऐसे नंबर भी मिलते हैं. मतलब जो रेंज हो गया वो काफ़ी बड़ा हो गया. पेपर 2 में जिनका सिलेक्शन होता है या जिनका नहीं होता है, उन दोनों के नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. मतलब जिनका नहीं होता उनके भी अराउंड 120-130 रहते हैं, और जिनके होते हैं उनके भी 130 में रहते हैं. 1-2 को अगर आप छोड़ दो तो मतलब यहाँ पे स्कोर जो होगा ना वो 130 प्लस माइनस आप इसमें हार्डली जो क्रिएट कर सकते हो वो 10, मतलब 120 से 135 के बीच मेजॉरिटी स्टूडेंट रहते हैं. मतलब वो आपके प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा गवर्न नहीं हो रहा, बट डज नॉट मीन कि आप उसको लूज छोड़ना है, बट वो थोड़ा बहुत हेल्प बिकॉज GS3 से भी मिल जाता है. अगर आपने ऑप्शन में नहीं पढ़ रखा, GS3 के इनपुट से थोड़ा यूज़ कर लिया तो स्कोर हमारा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता वहाँ पर, बट यहाँ पे वेरी करता है. टाइम भी आपको यहाँ ज़्यादा लगेगा
2/3 टाइम यहाँ लेंगे, जैसे इन टर्म्स ऑफ लेक्चर विल बी टेकिंग अराउंड 90 प्लस लेक्चर हेयर पेपर 1, तो यहाँ पे अराउंड 40 लेक्चर के अंदर वो कंटेंट हो जाएगा। आप भी जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है फॉर माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेस टाइम विल बी डिवोटिंग फॉर द सेकंड पेपर। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा, ये तो इसमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है फर्स्ट पेपर के स्कोर में, मतलब यू कांट टेक इट लाइटली। अब मैं क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लेक्चर हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 250 नंबर ऑफ लेक्चर हो गए। आउट ऑफ दैट 140-150 इज इन कॉमन विद द ऑप्शनल पेपर। तो हमारी ये जो क्लास है ये कॉमन चलेगी, तो जिनका ऑनलाइन है वो भी याद रखेंगे, ये यहाँ तक हमारी क्लास ये कॉमन चल रही है। ठीक है, मतलब ये क्लास बेसिकली ऑप्शनल की है, बट कंप्लीट ऑप्शनल कंटेंट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक सर्विस। बट सिर्फ इस 150 में व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड, दिस 150 इज नॉट इंक्लूडिंग इकोनॉमेट्रिक्स, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए। इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूमेरिकल, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। डिटेल ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, detail of certain topics like economic thought and so on, those things will be included in separately। तो ये 100 प्लस जो लेक्चर होगा वो सेपरेटली फॉर यू कैन से स्पेसिफिकली, here will be discussing a specific topic of IS only IS, वो सेपरेट क्लास होगी, उसमें फिर ऑप्शन के स्टूडेंट नहीं रहेंगे। वो मेनली फोकस हो जाएगा इकोनॉमेट्रिक्स पे, वो सेपरेट होगा, माइक्रो का न्यूमेरिकल होगा, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स होगा, या जहाँ भी सेपरेट है। दैट मीन्स दिस 100 एंड दिस कॉमन 140 ये कंबाइन करते हैं तो आपका इकोनॉमिक सर्विस का कोर्स होता है। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑप्शनल और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आई विल सजेस्ट टू डू पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ, दोनों के करवाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चन दोनों के साइट पे अवेलेबल होंगे आपको। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक सर्विस नहीं देना है, कंप्लीटली डिसाइड है वो देना ही नहीं आपको, तो आपको कौन सा सेक्शन नहीं देखना है? फिर जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर है वो नहीं देखोगे, बिल्कुल उसको भूल जाओ। कंप्लीटली नहीं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बट बिकॉज वहाँ भी वेलफेयर इंक्लूडेड है, वो तो कॉमन ही है, मार्केट इंक्लूडेड है, वो भी कॉमन है। तो बट इफ़ यू वांट टू लीव दैट, जस्ट लीव पेपर 1 ऑफ द IAS, जनरल इकोनॉमिक्स 1 पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इंडियन इकोनॉमी पेपर, वो आप कंप्लीट करो। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में यू विल हैव ऑप्शनल पेपर टॉपिक वाइज एंड IAS पेपर टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। मैंने ऑप्शनल का तो शो किया है, इधर आपको बस लास्ट में शो कर दे रहा हूँ। जैसे G2 वगैरह में ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है IAS के लिए, इकोनॉमिक सर्विस के लिए। दिस फॉर जनरल इकोनॉमिक्स 2 सेकंड पेपर है, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, मैं दोनों स्टेज दिखा रहा हूँ बिकॉज बोथ एग्जाम हैज़ टू बी टेकन बाय UPSC। पूल ऑफ क्वेश्चन तो एक ही है, वही क्वेश्चन कभी यहाँ आता है, कभी इस सेक्शन के अंदर आता है। नेचर ऑफ एग्जाम सेम है, आंसर राइटिंग टेक्निक भी हमारा सेम है, कंटेंट भी सेम है। और क्वेश्चन भी देखोगे तो कई क्वेश्चन जो यहाँ पूछे जा रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज़ वहाँ पूछे गए दोनों पेपर पे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये है, फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में एडवांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन, ये कॉमन है, दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, या अलग अलग जो ग्रोथ मॉडल है। तो ये टॉपिक वाइज को मतलब पूल ऑफ क्वेश्चन अगर आप कहोगे ना, तो आई थिंक दोनों को कंबाइन अगर कर लें तो अराउंड मोर देन 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, बट वो रिपीटेटिव है, 1000 का मतलब 1000 डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप आइसोलेट करोगे रिपीटेटिव क्वेश्चन हटा दोगे तो अराउंड 300-400 क्वेश्चन बनेंगे। तो वो 300-400 क्वेश्चन बेसिकली आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोर्स में क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन रिलेटेड टू द कंटेंट। स्टडी हमने एक्सप्लेन कर ही रखा है, सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉक पेपर है, फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, डायग्राम, रिवाइज द रिटन पार्ट इन दिस। अब जो स्कोर वगैरह जो मार्किंग है वो स्टूडेंट की वो साइट के ऊपर भी अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट के स्कोर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, बट स्कोर में कहना है ना, दोनों के ऑप्शनल का स्कोर अगर आप देखते हो
तो 276 ऑप्शनल इसके भी हैं, 276 इसके भी हैं, स्कोर दोनों के बराबर है। मतलब 275 टू 280 ये 2018 ऑनवर्ड्स हो रहा है, लास्ट 4-5 ईयर से हो रहा है। 2018 के रिजल्ट के अंदर 4-5 स्टूडेंट तो यहाँ पे भी थे जिनके 300 प्लस थे, 335 तक के स्कोर आते थे, बट उसके बाद से यूपीएससी ने डिसाइड कर रखा है कि नहीं देना है। इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, वो किसी भी ऑप्शनल के साथ है। तो नॉर्मलाइजेशन है, वो ट्रेंड ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली। 2018 ऑनवर्ड्स पहले क्या होता था कि वो एक कंसेप्ट डेवलप हो गया था कि सिलेक्शन तो ऑप्शनल से होगा, जीएस में नंबर नहीं आता है। तो उस जो परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था उसको ब्रेक कर रहे हैं कि अब जीएस में नंबर दे रहे हैं, ऑप्शनल में नहीं दे रहे। इवन जो टॉप 10 में आ रहा है उसके भी 300 नहीं बन रहे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो आप सेफली एम करो, मतलब जो 2000 आज की डेट में अगर 270-80 स्कोर कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो यू आर बेसिकली स्कोरिंग 320-325। ये नॉर्मलाइजेशन है जिसकी वजह से आप ये 280 दिख रहा है आपको। 280 का स्कोर, आज का जो स्कोर है वो 320 स्कोर है फॉर 2080। ठीक है, इन सब का आंसर शीट वगैरह मिल जाएगा इफ यू। और वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस ईयर दिस सपोर्ट फॉर द जीएस इकोनॉमी पेपर 3 जनरल स्टडीज इकोनॉमी सेक्शन ओनली फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फॉर स्पेसिफिक, बिकॉज हर पेपर का नीड अलग है, थोड़ा सा मोल्ड आपको करना है फॉर जीएस में कैसे आंसर लिखना है, वहाँ पे कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट हो जाएंगे, ऑप्शन में कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे। सो यू कैन अटेंड दिस सेशन एज वेल फॉर द जीएस इकोनॉमी सेक्शन। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए भी है, मतलब 2 प्रोग्राम एक्चुअल में है। जिनका मेंस 2023 में होगा उनके लिए मार्क्स एनरिचमेंट कोर्स होगा सिर्फ, और जिनका 2024 के लिए फॉर देम इट इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस, बिकॉज प्रीलिम्स में भी अराउंड 15-20 क्वेश्चन इकोनॉमी वाले सेक्शन के हैं। और जैसा पैटर्न हो रहा है, अगर उसमें जब हम फाइट कर रहे हैं कि ठीक है 70-75 पे भी सिलेक्शन अब होने की बात हो रही है, वैसे में अगर आप अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वो भी स्ट्रॉन्ग करके रखो जिसमें एरर कम हो, तो अगर आपने वो करेक्ट कर लिया तो वो आपका 50% रिक्वायरमेंट तो पूरा कर ही दे रहा है, 40% रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है जनरल स्टडी पीटी स्टेज में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। यहाँ तक एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जो अभी तक बोला है, देन वी कैन स्टार्ट विद द कंटेंट पार्ट। यस, paragraph. In again, this is the main purpose we are starting with this course. In GS economy you should be writing mainly in the points form. GS के आंसर लिखने का तरीका थोड़ा पॉइंट्स वाइज में होगा, और जो ऑप्शन में लिखने का तरीका होगा वो शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ जैसे मैंने आपको कंटेंट में यहाँ एक्सप्लेन किया कि आंसर जब आप लिख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप आंसर को इस फॉर्मेट में लिखो। जस्ट वेट, ठीक है, इस टाइप से बेसिकली लिखना चाहिए आंसर जब आप लिख रहे हैं ना, तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। शॉर्ट पैराग्राफ बेसिकली यूज़ करने, अंडरलाइन करना है। बट कोई भी स्ट्रैटेजी जब मैं कह रहा हूँ ना, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि थ्रू आउट मुझे यही करना है। पेपर के अंदर मैंने कहा कितने क्वेश्चन लिख रहे हो आप, 19 क्वेश्चन लिख रहे हो। आई एम नॉट सेइंग दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी रिटन इन द सेम फॉर्मेट। स्टूडेंट कहते हैं ऐसे लिखेंगे, बेटर प्रेजेंटेशन स्केल यूज़ करेंगे, सर टाइम ही नहीं होता, उतने तो क्वेश्चन छूट जाते हैं हमारे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरे 19 क्वेश्चन पॉइंट्स वाइज लिख देने, जस्ट यूज मिक्स, राइट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट। जहाँ टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और टाइम मैनेज करने के लिए अपने, सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन यू कैन राइट इन द पॉइंट वाइज, जहाँ इलेबोरेट हमने नहीं किया। अब इलेबोरेट हमने अगर नहीं किया तो कुछ क्वेश्चन मैंने इलेबोरेट नहीं किया, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने इलेबोरेट किया है। अगर आप लेटेस्ट से अपने स्टडी को लेके चलो कि टाइम तो मैनेज हो जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं पूरा पूरा। इनिशियल क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो तो आप लास्ट के क्वेश्चन अगर आप लिखते हो पॉइंट्स वाइज में, थोड़ा कम लिखा है, एग्जामिनर भी समझ रहा है टाइम कंस्टेंट हो सकते हैं, बट मैं फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस पॉइंट को कि आप पहले से ही हरी में हो, फर्स्ट क्वेश्चन ही वैसे लिखा है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, आप आंसर जिस वे में एग्जामिनेशन हॉल में लिखो, इवेल्युएट तो पहला क्वेश्चन ही पहले होगा। अब वो वाली बात, पुराने वाली बात तो है नहीं कि क्वेश्चन पेपर अलग है आंसर अलग लिख रहे हैं। अब तो क्वेश्चन वहाँ टाइप्ड है, तो एग्जामिनर को तो पहला ही क्वेश्चन मिलेगा ना, फर्स्ट ही वो पहले इवेल्युएट करेगा। आपने बेशक उसको लास्ट में लिखा हो, टाइम नहीं था आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, बट उसके परसेप्शन में क्या रहेगा आप सोचो। उसे तो ये लगेगा ना कि ये क्वेश्चन आपने पहले लिखा और इतने, तो एग्जामिनर के माइंडसेट को भी, उसके माइंड को भी आप रीड करो थोड़ा। जब वो इनिशियल क्वेश्चन इवेल्युएट कर रहा होगा, देन ऑब्वियसली एक परसेप्शन बन जाएगा। 4-5 क्वेश्चन हम चेक करेंगे, परसेप्शन बन जाएगा कि स्टूडेंट बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है। कोई भी एग्जामिनर ना वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा सेंटेंस आई थिंक नहीं पढ़ता होगा, बट वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा आपके इनिशियल क्वेश्चन से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट। इनिशियल जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उस पर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ता है, तो लगा करके मुझे उसे क्या करना है, अच्छा करना है। स्टार्ट आपका अच्छा, मतलब जो फर्स्ट 1.5 आवर आप यूज़ करोगे ना, उसमें जो भी आंसर आप चूज़ करोगे जो स्टार्ट में आपको पता है कि ये इवेल्युएट होने हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा करके थोड़ा अपना इमेज इम्प्रूव कर लो, सो दैट लास्ट में अगर थोड़ा कम भी लिखा है ना तो उसमें वो बेटर मार्किंग मिल जाएगी आपको। नहीं, ऑप्शन में इंट्रो तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे इस तरीके का एग्जैक्ट इंट्रो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट क्वेश्चन का एक्चुअल में नेचर ऐसा होता है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फॉर्मल कंक्लूजन हियर। ऑब्जेक्टिविटी है ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे फॉर्मल कंक्लूजन नहीं है। बट हाँ, अगर आप पेपर 2 की बात करोगे, सेकंड पेपर, तो इन सेकंड पेपर इन सम क्वेश्चन कंक्लूजन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी स्टडी जब बोली जा रही है तो उसे यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं करना है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एवरीवेयर। इट इज़ एप्लीकेबल इन सम क्वेश्चन समवेयर, कहीं कहीं अप्लाई होगा, कहीं अप्लाई नहीं होगा। देखो, जब स्ट्रैटेजी, जब हम आप व्हेन वी डिस्कस बेसिकली एनी स्ट्रैटेजी, तो वी क्लेम टू फॉर्म बेसिकली अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शन कैसे प्रिपेयर करेंगे, यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करेंगे। देयर इज नो, वी कैन से देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी। परफेक्ट स्ट्रैटेजी इनफैक्ट है नहीं। वी ऑल आर नॉट बॉर्न परफेक्टली, वी मे नॉट डाई परफेक्टली, वी आर नॉट लिविंग परफेक्टली, सो हाउ कम आवर स्ट्रैटेजी कैन विल बिकम परफेक्ट। जब कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पढ़ने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, फुल प्रूफ है कि ये हो ही जाएगा हमारा। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू रिड्यूस दी इम्परफेक्शन। इम्परफेक्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लो। प्रिपरेशन भी हमारा इम्परफेक्ट ही होगा, हमें उस इम्परफेक्शन को क्या करना है, कम करना है। मिस्टेक होंगे हमसे, आपसे भी होगा, मेरे से भी होगा, हमें मिस्टेक को कम करना है। सिलेक्शन उनका होता है जो एरर कम करेंगे। एरर तो वो भी करेंगे, फुल प्रूफ उनके पास भी नहीं है। हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। आप चाहे जितने मर्जी मेरी बात सुन लो, किसी टॉपर की बात सुन लो, यू विल हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आप इनपुट ले रहे हो, बट वो सारे इनपुट ले करके मैंने बेटर स्ट्रैटेजी बनाई है वो भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी स्ट्रैटेजी बेटर ही है। वो तो आउटकम डिसाइड करेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इम्परफेक्शन को कम करना है। तो कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे। वो किसी भी पेपर के अंदर है, चाहे जनरल स्टडीज़ हो या ऑप्शनल हो। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सोर्स ऑल्सो। मैंने एक सोर्स आपको बोला है, वो क्लोज आ रहा है, नीड के क्लोज आ रहा है। यू मे चूज टू हैव अ सेपरेट सोर्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग स्टूडेंट्स के आंसर्स के देख करके जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बिकॉज यूपीएससी ने कोई प्रिस्क्राइब तो किया नहीं है कि आप ये बुक पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बट बुक वो पढ़ो जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो गया फॉर दिस ओरिएंटेशन वी कैन से फॉर द ऑप्शनल।